स्टूडेंट गुड मॉर्निंग राजे ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇਮ ਰੱਖਿਆ ਸੁਮਨ ਕੇ। ਇਹਦਾ ਰਾਜੇ ਹਰੇਕ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੀਨਿੰਗ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਐਸ that is stand for कि आप ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਗੇ ਸਿੱਧੇ। U means ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਗੇ ਉਲਟੇ। M ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੇ ਮੁੱਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਗੂਠੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੈ। N ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੋਹ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਫ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਚੈਪਟਰ ਜੋ ਹੈ ਰਾਜੇ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣਾ BRS। ਹੁਣ ਰਾਜੇ BRS ਚੈਪਟਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਨੀਡਸ and objectives of bank reconciliation statement. Right? We have a topic of now needs and objectives of BRS bank reconciliation statement. Raja, objective number 1, why we need to prepare the BRS. So Raja, our first objective is to attest the accuracy of our business cash book. Our business cash book. ਇਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਔਰ ਬੈਂਕ ਕਾਲਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪਾਸਬੁੱਕ ਨਾਲ ਜੇ ਟੈਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੀ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦਾ ਜੇ ਬੈਂਕ ਕਾਲਮ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਔਰ ਵਿਦਡਰਾਅਲ ਕਾਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੈਚ ਕਰੇ। ਸੋ ਫॉर ਇਟ we need to prepare the BRS. राजा अपनी second need है that is to detect the error. To detect the errors. Raja, we know very well BRS is a statement containing the different reasons which are responsible for mismatching the BRS, mismatching the passbook and the cash book. So अगर आप BRS बना रहे हैं ਆਪਾਂ ਨੂੰ cash book ਦੇ ਵਿੱਚ क्या अपनियां errors ने और अज आप डिटेक्ट कर सकते हैं। right, this is our second need. third need is to prevent from fraud. To prevent from fraud. To prevent from fraud. अगर अज आप BRS तैयार कर रहे हैं तो राजी कैश बुक ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜੋ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਣ। ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਮਾਉਂਟਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਰਾਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਿੰਗ ਦਾ BRS। ਰਾਈਟ, ਰਾਜੇ fourth objectives. To see the delay in collection
and payment for check। राजे अपन चेक की जो पेमेंट है कलैक्शन है और डिले कितनी हो रही है और जी चेक की पेमेंट है वो बैंक के डिले की जा रही है राइट। और अजे आप डिले भी BRS बना के पता कर सकते हैं जितों सूँ भी आइडिया हो सकता है कि कैश बुक तो पासबुक मैच क्यों नहीं कर रहे राइट। ये बाद 5 रीजन है दैट इज इट contains reasons which are responsible for mismatch the cash book and passbook। अपन जी BRS नाल वो सारे रीजनस फाइंड आउट कर सकते हैं देख सकते हैं जिन्ना करके साड़ी कैश बुक और पासबुक आपस च मैच नहीं कर रही राइट। सो राज ये अपने 5 नीड्स और ऑब्जेक्टिव है राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। नैक्सट टॉपिक है जी अपने को है कि बैंक स्टेटमेंट ते बैंक रिकनसीलेशन स्टेटमेंट क्या डिफरेंस है। Difference between bank statement and bank reconciliation statement। bank reconciliation statement जी बैंक स्टेटमेंट ते बैंक रिकनसिलेशन स्टेटमेंट क्या डिफरेंस है। दिस इज आवर टुडे इंपॉर्टेंट टॉपिक। राजी अपने को सब तो पहला है बैंक स्टेटमेंट राजी वो बाद है BRS। दिस इज बेसिस। फर्स्ट पॉइंट राजे हु प्रिपेयर राजी बैंक स्टेटमेंट कौन बनाता है BRS कौन बना रहा है। बैंक स्टेटमेंट मोस्टली प्रिपेयर्ड बाय द बैंक राइट एंड BRS मोस्टली प्रिपेयर्ड बाय द कस्टमर और मोस्टली इट इज प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट होल्डर राइट। सेकंड है राजा अपने को ऑब्जेक्टिव। राजी बैंक स्टेटमेंट ते BRS का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है राइट। राजी बैंक स्टेटमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है राजी कस्टमर नू बैंक दी सारियां ट्रांजैक्शंस जो आप बैंक नाल कीतियां उन्हां बारे इन्फॉर्म करना। ऑल ट्रांजैक्शंस मस्ट कन्वे टू कस्टमर। बैंक स्टेटमेंट के थ्रू जो भी साडी डीलिंग्स है बैंक नाल वो सब ट्रांजैक्शन की नॉलेज राजे कन्वे करनी है बैंक ने कस्टमर को। जबकि BRS का राजे मेन ऑब्जेक्टिव की है टू रिकनसाइल द कैश बुक एंड पासबुक। अगर जी कैश बुक के पासबुक आपस मैच नहीं कर रही
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਰਿਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਔਰ ਪਾਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਮੈਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਹੈ ਰਾਜੇ ਟਾਈਮਿੰਗ। ਟਾਈਮਿੰਗ बैंक स्टेटमेंट राजे कदों बनाई जाए, BRS कदों बनाया जाए, राइट। राजे बहुत एक पर्टिकुलर डेट में राजे प्रिपेयर किए जाएंगे। दोनों ने दोनों राजे पर्टिकुलर डेट दे विच प्रिपेयर किए जाएंगे सेम, राइट। इसके बाद है राजे नेसेसिटी। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਹੈ ਤੇ BRS ਦੀ ਕਿਉਂ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਾਜੇ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ ਬਾय द बैंक, ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਪਲਸਰੀ ਬਾय द बैंक, ਜਦਕਿ ਰਾਜੇ BRS ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ क्योंकि राजे अपनी कैश बुक और पासबुक मैच कर रही है, देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर इट। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਲਾਸਟ अपने को डिफरेंस का पॉइंट है कंटेंट्स। राजी बैंक स्टेटमेंट दे विच राइट अपने को राजी विदड्रॉल्स बारे नॉलेज हो सकती है। विदड्रॉल्स ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ नॉलेज हो सकती है। डिपॉजिट्स के बारे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ नॉलेज हो सकती है। बैलेंस के बारे एटसेट्रा, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस की वही नॉलेज हो सकती है, राइट। BRS दे विच राजे बेसिकली कॉजेस होंगे, कॉजेस ऑफ डिफरेंस कि कैश बुक और पासबुक क्यों नहीं मिल रही, राइट। कॉजेस ऑफ डिफरेंसेस या फिर राजे दे विच की हो सकता है, अमाउंट से बारे नॉलेज हो सकती है, राइट। सो राजे ए बैंक स्टेटमेंट और BRS ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਰੀਜ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਚੋਂ ਕਿ ਪਾਸਬੁੱਕ ਔਰ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਰਾਜੇ 11.5 ਤੇ ਟੌਪਿਕ ਮਿਲੇਗਾ ਰੀਜ਼ਨਸ ਫॉर द डिफरेंस इन द बैलेंसेस ऑफ कैश बुक एंड द पासबुक। इन्हों राजे सैल्फ स्टडी करना है, राइट। तो कैश बुक तो पासबुक क्यों नहीं मिल रही और ये राजे मैं फिर तो अगर कोई प्रॉब्लम आई वी विल डिस्कस इन द ऑनलाइन क्लास और क्लास के भी राजे टॉपिक मैं डिस्कस करूँगा खुद भी। पर इस वीडियो राजे जितना भी तुम वीडियो देखा है इस वीडियो दोबारा जी ये जी डिफरेंसेस है राजे तुम आप स्टडी करने हैं, ठीक है। हुण राजे आप एक छोटी जी एग्जाम्पल करांगे ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। जो राजे BRS का स्ट्रक्चर है पहला जो समझ लो। BRS के स्ट्रक्चर राजे पहला सीरियल नंबर होएगा, पर्टिकुलर होएगा, डिटेल का कॉलम होएगा और अमाउंट का कॉलम होएगा। ये होएगा राजे डिटेल का कॉलम, ये होएगा अमाउंट का कॉलम, ये होएगा राजे पर्टिकुलर, ये होएगा राजे सीरियल नंबर। राजे बिल्कुल टॉप पे लिखा जाएगा BRS, किस डेट को राजे बना रहे हो एज ऑन और ये डेट मेंशन करनी है, राइट। BRS बनाने राजे बेसिकली 3 मैथड है। कितने मैथड है? ये 3। दैट इज मैथड्स ऑफ राजे BRS ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਡਸ ਹੈ बेसिकली वो 4 है, 3 है। मैथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग BRS। एक राजे मैथड है नंबर 1 ਤੇ
पॉजिटिव एंड नेगेटिव मेथड। दूसरा मेथड है जी ऐड और लेस मेथड, ऐड एंड लेस मेथड, ठीक है ना जी, METHOD। एक तीसरा मेथड हो रहा है, बट बेसिकली पहले दो मेथड ही ज़्यादा चल रहे हैं। जो जी थर्ड मेथड है वो है डेबिट एंड क्रेडिट मेथड। थर्ड मेथड है डेबिट एंड क्रेडिट मेथड। अपना जी सब तो ज़्यादा जो आसान और पॉपुलर मेथड है वो है जी ऐड एंड लेस मेथड। अपना जी ऐड और लेस मेथड ਨੂੰ ਹੀ ज़्यादा प्रेफरेंस देवांगे और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ BRS स्टडी करांगे, राइट। हो रहा जी मेरे को आ रहा है एग्जाम्पल नंबर 1, इलस्ट्रेशन 1, राइट। चैप्टर नंबर 11, राइट, चैप्टर हैगा अपना 11, चैप्टर 11 और ये पेज नंबर आप डिनोट कर रहे हैं, दैट इज 11.15, 11.15। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है एज 31 March 2017 कैश बुक ऑफ दीपक कुमार शो बैंक बैलेंस 30,000। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड मेंशन द डेट 31 March 2017। तो डेट शुड बी देयर 31 March 2017। अपने को जी कैश बुक का बैलेंस दे रखा है, बैलेंस एज पर कैश बुक। जी कैश बुक सानू दिखा रही है कि थोड़े बैंक च पैसे है 30,000। अपना जी अमाउंट वाले बॉक्स च लिखने हैं, इसनों अपना जी डेबिट बैलेंस भी कह सकते हैं, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 30,000। ये शो कर रहे हैं कि थोड़ी कैश बुक शो कर रही है कि बैंक च कितने पैसे 30,000। ये बाद जो चेक डिपोजिटेड 36,000 बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक टिल 31 March 2017। अपना जो 36,000 रुपीज़ बैंक से जमा कराए, कैश बुक जो पैसा शो कर रही है भी कैश बुक पैसा बढ़ गया, पर अजे वो चैक बैंक च जमा नहीं हुई। अपना जो कैश बुक की लाइन लंबी करने का मतलब है कि कैश बुक च रिकॉर्डिंग कर ली कि पैसा बैंक च आ गया, पर पासबुक के यानी कि बैंक के पैसा नहीं आया। इस करके जो बैंक की मैं लाइन पासबुक की लाइन छोटी की है, पासबुक बैंक में शो कर रही है। अपना जो अपनी कैश बुक को पासबुक के बराबर करना है, पासबुक साडा टारगेट बुक है, साडी टारगेट बुक है जी पासबुक। अगर पासबुक घट है तो जी आप अपनी कैश बुक भी घटावांगे, पर जी इस करके इत्थे आप इसनूं लेस आइटम का नाम दे रहे हैं। अपने इत्थे स्टेटमेंट लिखांगे चेक डिपोजिटेड, चेक डिपोजिटेड बट नॉट credited by बैंक। 31 March 2017 तक चेक क्रेडिटेड नहीं हुए, दिस इज 36,000। ये अमाउंट आप सब तो पहला डिटेल वाले कॉलम च एंटर करना है, राइट। ये बाद नैक्सट है चेक इशूड 15,000 ऑन 31 March 2017 वर नॉट प्रेजेंट फॉर द पेमेंट। और जी आप लोगों को पेमेंट की है, आप कैश बुक के अपना अमाउंट जो घटाता, साड़ी कैश बुक की शो कर रही है कि पैसा बैंक तो चला गया। इस करके जो आप कैश बुक की लाइन छोटी रख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल जिन्होंने लोगों ने जो आप चैक दिता वो बैंक च नहीं आए, सो बैंक च पैसा उन्ना ही है जिन्ना पहला सी राजे। तो पी पासबुक यानी कि बैंक की शो कर रहा है कि पैसा बैंक से ज़्यादा है तो कैश बुक च घट है। अपनी टारगेट बुक केड़ी है पासबुक, तो जे अगर पासबुक ज़्यादा है उस पैसा ज़्यादा है तरह जे आप भी कैश बुक च पैसा ज़्यादा कर देना है। आप ऐड करांगे आला कि चेक इशूड बट नॉट
presented, check issued but not presented 15,000, ये भी जी डिटेल च लिखना आप, right? अरे बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, अरे बैंक वाले ने पैसे 700 रुपीज़ कट कर ले अपनी डिपॉजिट चो, बैंक च पैसा कट गया, बट बैंक अपना इंटीमेट नहीं कर रहा, अपने को कैश बुक जो है वो की दिखा रही है कि पैसा बैंक च ज़्यादा है, बट एक्चुअल पैसा बैंक च घट चुके हैं। पी दैट मीन्स पासबुक दैट मीन्स कनैक्टेड विद बैंक सानू दिखा रहा है कि पैसा बैंक च घट गया, पासबुक पैसा घट है, अपना जी कैश बुक च पैसा ज़्यादा नोट कर रखे, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। हुण जे आप कैश बुक नू टारगेट बुक के नाल कंपेयर करना, वो बराबर मैच करना, अगर बैंक च पैसा घट है तो आप भी पैसा घटा देना है। अपने जो इत्थे लिखना है बैंक चार्जेस, अपने जो पैसा घटा रहे हैं लेस आइटम, बैंक के जो चार्जेस है 700, ये आप डिटेल वाले कॉलम शो करांगे, राइट। ये बारे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिटेड क्रेडिटेड बाय बैंक 1100 पर नोट एंटर्ड इन द कैश बुक, ये बैंक वाले ने आपको इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट साडे खाते जमा करता, साडे बैंक च पैसा वध गया, लेकिन ये बैंक ने सानू इन्फॉर्म नहीं किया, इस करके आप कैश बुक के बैंक कॉलम च पैसा राजे घट नोट किया, राइट। तो राजे अगर बैंक च पैसा ज़्यादा हो जाए, आप अपनी कैश बुक के टारगेट बुक नाल कंपेयर करना है, जिन्ना पैसा बैंक च उन्ना ही पैसा आप कैश बुक के बैंक कॉलम च राजे शो करना है। अगर पासबुक ज़्यादा है यानी कि ज़्यादा पैसा है तो राजे कैश बुक के भी आप कुछ अमाउंट ऐड करांगे, दैट इज इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट दैट इज क्रेडिटेड बाय बैंक, क्रेडिटेड बाय बैंक, राइट। राजे अपने को डिटेल वाले कॉलम च आ गया 1100, राइट। ये राजे एक कस्टमर ने डायरेक्ट पैसे बैंक से जमा कराते, राजे बैंक से पैसा फिर बढ़ गया, लेकिन बैंक ने आपको इन्फॉर्म नहीं किया। पी वाली लाइन राजे पासबुक की लाइन दिखा रही है कि पासबुक च पैसा बैंक च पैसा ज़्यादा है, लेकिन आपको इन्फॉर्म नहीं किया, इस करके कैश बुक च पैसा घट है। आप राजे अपनी कैश बुक को फिर टारगेट बुक के बराबर लेके आ रहे हैं, कैश बुक च कुछ पैसा आप होर राजे ऐड करांगे, ऐड दैट इज डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, कुछ पैसा राजे आप ऐड करांगे, दिस इज 6500, 6500। तो ये सारी ऐड वाली आइटम एक बार डिटेल च एंटर करनी है। क्लब सब्सक्रिप्शन पेड बाय द बैंक अंडर द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस 5500 नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। वैसे बैंक ने पेमेंट कर दी, क्योंकि आप बैंक को कह रखा है कि अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन पे करनी है वो साडे बिहाफ ते पे कर सकती है बैंक, आप बैंक को राइट पे किया, राइट दे रखा है। तो बैंक जो पैसा चला गया सब्सक्रिप्शन का, पर बैंक ने सानू इंटीमेट नहीं किया, साडे बैंक च पैसा घट है, पी पासबुक की लाइन शो कर रही है, पर कैश बुक च पैसा ज़्यादा है। आप अपनी कैश बुक नू टारगेट बुक यानी कि पासबुक के बराबर कर रहे हैं, पासबुक च पैसा घट है, कैश बुक च ज़्यादा है, और अजे आप भी पैसा घटा देंगे, स्टेटमेंट में ही लिखांगे सब्सक्रिप्शन दैट इज पेड बाय बैंक, सब्सक्रिप्शन पेड बाय बैंक। तो बैंक ने सब्सक्रिप्शन पे कर दी 5500। राजे स्टेटमेंट नूं ध्यान नाल देखो, राइट। होर जी ऐड वाली आइटम है और आप ऐड कर देनी है 15,000 प्लस 1100 प्लस 6500, 22,000 और 600 का अमाउंट ऐड वाली आइटम जो ऐड करके इन्हों का नैट अमाउंट आप बाहर कढ़ देना। अपने उरे 30,000 बैंक च पहला है और 22,600 राजे होर हो गया अपने को। अपने को राजे बैंक के पैसा हो गया है 52,600। और राजे माइनस वाली आइटमां का आप टोटल करांगे भी कितना पैसा बैंक चो चला गया। राजे 36,000 एक है, 700 एक है, 5,500 एक है।
जी बैंक चो पैसा चला गया 42,200, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਾਂ 52,600 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਜੀ ਨੈਟ ਅਮਾਉਂਟ 10,400 ਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਰਾਜੇ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਚ ਪਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ ਬੈਲੈਂਸ ਐਜ਼ ਪਰ ਪਾਸਬੁੱਕ। अगर अज आप कैश बुक का बैलेंस लैके चल रहे हैं तो अपनी कैश बुक को पासबुक के बराबर कर रहे हैं आप। अगर ऊपर बैलेंस कैश बुक का है तो नीचे बैलेंस पासबुक का होएगा। राइट सो राजे दे विच कोई प्रॉब्लम आई तो आप ऑनलाइन क्लास डिस्कस कर सकते हैं। उम्मीद है कि राजे मैथड्स एडलेस वाला ईजी होएगा और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वी विल डिस्कस इन द ऑनलाइन क्लास। राजे एग्जाम्पल नंबर 1 नोटबुक ते नोट करनी है विद स्टेटमेंट विद सोल्यूशन और एग्जाम्पल नंबर 1 के नाल जिहड़ा फॉलो अप है और राजे जरूर करनी है। स्टेटमेंट भी नोट करनी है और साथ में सोल्यूशन भी करना है। ठीक है जी, तो थैंक यू।